काठिया साहब के कुछ बच्चे का रोला बना। जी जी। जी सुहेल इंसार खान साहब के घर का कबूतर है, मगर हमारे पास तो वही कबूतर है सारे। अच्छा अच्छा। जो फोल करे उसको इतनी सजा जरूर मिले, साल 2 साल 3 साल के लिए। ठीक हो गया। इस बार ये चाहते हैं इंशाल्लाह पंजाब से खोलेंगे टू लाली को और हसन लाली को। जी जी। लेकिन एक अपना इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में जाके छत बनाना, ये उनको बहुत बड़ी सलूक है। ऐसा ही है। दो पट्टी वाले जैसे कबूतर उड़ते हैं, 5-6 बच्चे एक दूसरे के पीछे उड़ रहे हैं। जी जी। उस्ताद इब्राहिम उर्फ इबरी उस्ताद जिहड़ा है, जी जी। वो तकरीबन पूरे पंजाब ही कबूतर उड़ाने रहे ने और उन्होंने पूरे पंजाब दे विच शागिर्द ने। ठीक है। मादी नारिज की वेखन ते उन जोड़ा लान। जब कबूतर लाहौर में आपके असूल के मुताबिक उड़ेंगे, बंद हो गए और निकलेंगे, हाँ तो जी। आप नहीं कह सकते। ऐसा ही। मिट्ठू लाली को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। जी जी। कबूतर की एक हड्डी आ रही है, ये इधर हड्डी खत्म हो गई है। ठीक है। इनके कुछ कबूतर हैं जो जेठ 2025 में उड़ने हैं। ये परपट्टी इन्होंने की हुई है, माशाल्लाह देखिए खूबसूरत। वेलकम बैक टू सरदार पिजन, एक और वीडियो में खुश आमदीद दोस्तों। आज हम मौजूद है जी एक पिंडी की एक और चैम्पियन छत पे, जहाँ पे हमारे साथ सीनियर उस्ताज़ा भी बैठे हुए हैं। तो इनसे गपशप करेंगे, कबूतरबाजी के मुतालिक सवालात भी करेंगे। और ये जो छत मौजूद है जी, ये त्रामड़ी चौक में अनूर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर छत मौजूद है जी। जो ये शागिर्द हैं जी उस्ताद इब्राहिम के, इनका नाम है जी उस्ताद काजी साहब, इनका नाम है जी। तो अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी भाई सलाम। उस्ताद जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। उस्ताद जी ये हमारे सीनियर उस्तादों के साथ बैठे हुए हैं और ये भाई भी बैठे हुए हैं, इनका सबका तारुफ करवाएं ना, फिर आपके साथ मज़ीद गपशप करते हैं। ये अपने बड़े भाई हैं जी, उस्ताद अख्तर साहब। उस्ताद जी आप ही कराओ ज़रा अपने आवाज़ ज़रा पिंडी ने तुसा। जी उस्ताद अख्तर बरलास, रावलपिंडी, रत्ता इमरान। ठीक हो गया। और ये साथ बैठे हुए हैं जी उस्ताद शकीब साहब ठीक है। गुजरांवाला। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਪਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਪਈ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੜਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਰਫ ਇਬਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 20-25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਪਿਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਕਮਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ 20-22 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਨੁਮਾਨ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਖਲੀਫਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਉਡਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ performance ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਿਪਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਸਤਾਦ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੀ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੱਤ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਛੱਤ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ? ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਛੱਤ। ਤੇ ਕੈਸੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤਵੱਕੋ ਕੈਸੀ ਕਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਸੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਸ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕੈਸੀ ਰਹੇਗੀ? ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਫਿਕਸ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 95% ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ, उन्होंने को मैं सवाल किया कि साढ़े इस्लामाबाद पिंडी माशाल्लाह खूबसूरत छत्ता ने तानू दोस्तों इस छत का भी आपको व्यू दिखाएंगे। माशाल्लाह ये सोने पे सुहागा जैसे छत होती है ना, ये वैसी छत है, इतनी खूबसूरत छत है। मैं इस छत का भी आपको व्यू दिखाऊंगा। तो उस्ताद जी से पहले क्वेश्चन कर लूँ। क्वेश्चन उस्ताद जी है तुहाडे कोलों कि एड्डी खूबसूरत छत, इतने नायाब परिंदे, खूबसूरत परिंदे, तो की वजह है कि साढ़े इस्लामाबाद पिंडी च लोग पंजाब चैंपियन नहीं बनते? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਫਿਕਸ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ। ठीक है। ਕਿ 11 ਉਡਾਏ ਨੇ ਤੇ 11 ਚੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक ਤੇ है। ਇਜ਼ੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੱਤ ਫਿਰ ਬਾਹਰ
ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਛੱਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਓ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਕੀਬ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਸੁਹੇਲ ਇੰਸਾਰ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਇੰਸਾਰ ਖਾਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਜੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਨ ਖੋਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਨਹੀਂ 99% ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚ ਜੇਠ ਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਛੱਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹਾਰਟ 'ਚ। ਜੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜੇਠ ਖੇਲ ਲੈਗਾ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬਰੀਡਿੰਗ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ, ਦੋ ਮਾਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ। देखिए जी सबसे पहले तो कबूतर की ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। इसलिए कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਲਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਟਿਪ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਟਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਲਾਓਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਜੋੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਨ ਲਈ ਜੋੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਡਾਨ ਲਈ ਜੋੜਾ ਲਾਣਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਡਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸੁਹੇਲ ਇੰਸਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮੱਗਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੱਗਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਮੱਗਰ ਪਿਓਰ ਵੀ ਉਡਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਟੈਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਲਾਓ ਉੜੇਗਾ, ਪਿਓਰ ਵੀ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਬੂਤਰ ਲਾ ਲਓ, ਮਸਾਲੇ ਟੈਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮੱਗਰ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੇ ਉਡਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਗੀ। देखिए मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ब्रीड है, सारी ब्रीडें अच्छी होती हैं। हर ब्रीड में अच्छे कबूतर भी होते हैं, बुरे कबूतर भी होते हैं। ठीक है ना। ये नहीं कि टैडियों में सारे अच्छे हैं, कमगरों में सारे अच्छे हैं, सियालकोटियों में सारे अच्छे हैं। ठीक है। हर कबूतर में नस्ल में अच्छे भी कबूतर होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपके सियालकोटी कबूतर हैं या आपके टैडी कबूतर हैं, अगर आप उनको लाल आंखों का क्रॉस दें, कमगरों का क्रॉस दें, तो आपकी आउट क्लास परफॉर्मेंस हो जाएगी। इसलिए कि लाल आंख के बगैर मेरी समझ के मुताबिक कबूतरबाजी नहीं है जेठ। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी वापस आपके पास आते हैं। उस्ताद जी आप ये इस्लामाबाद पिंडी के जो कमेटी हैं, जो इंतज़ामिया हैं, आप इनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जैसे कि देखें कि एक कोई बड़ा उस्ताद होता है, बड़ी कोई छत होती है, अगर वो कोई फॉल करता है, ठीक है, उसकी छत बैन नहीं की जाती। अगर कोई छोटा खिलाड़ी फॉल नहीं भी करता, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, उसकी छत बैन कर दी जाती है। तो आप इंतज़ामिया को क्या पैगाम, अच्छा पैगाम क्या देना चाहते हैं उनको? पंजाबी बोलो जो। जी मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ जी जी कि सबको बराबर रखें। ठीक है। और किसी की फेवर ना करें। ठीक है। किसी की सिफारिश ना माने। ठीक है। मेरिट पे फैसले करें। ठीक हो गया। चाहे वो अपना है चाहे वो पराया। तभी कमेटी का नाम अच्छे लफ्ज़ों में गिना जाता है, ऐसा ही है, लोग तारीफ़ करते हैं। ठीक हो गया। अगर आप मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को अच्छा नहीं कहेंगे। सही बात है। ठीक है। ज़्यादा मुखालफत होगी, दूसरा जो है मामलात ख़राब होते हैं। ठीक है। तो अगर चाहे गरीब है उसका भी फैसला मेरिट पे हो। हाँ जी। और चाहे अमीर है तो उसका भी फैसला मेरिट पे हो। हाँ जी। ये नहीं कि मतलब है कि जब पैदा हैं और बाजियाँ लगी हैं, अगर वो फॉल कर गया, वो सामने नज़र आ गया, पकड़ा गया, हाँ जी, तो उसकी आप बाजियाँ उड़वा दें और उस पर आप बैन नहीं लगाते। ठीक है। उस्ताद जी आप पैसे उस पर जुर्माना कर के तो उसको बहाल कर देते। ठीक है। ये कोई तरीकाकार तो नहीं है ना। जो फॉल करे
उसको इतनी सजा ज़रूर मिले साल 2 साल 3 साल के लिए जी, जी। कि कम से कम उसको वो दोबारा फाउल करने की हिम्मत ना करे। ना करे। अगर आप उसके ऊपर पैसों का जुर्माना डाल देते 15,000 20,000, सरमायादार पार्टियाँ वो देंगे तो फिर शौक कर लेती हैं, फिर मामला और मतलब जितने बड़े कापे हैं और छतें वहाँ की लें जहाँ तक वो अप्रोच कर सकें। ठीक है। आप छतों पे आप विज़िट करें तो आपको तकरीबन 90% जो मुनसिफ हैं वो अनाड़ी मिलेंगे। अनाड़ी मिलेंगे, ऐसा ही है। तो जब अनाड़ी मुनसिफ जाएंगे तो वहाँ पे फैसले भी फिर अनाड़ियों वाले होंगे। अनाड़ियों वाले ही होंगे। अच्छा उस्ताद जी, आप हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप अभी बता रहे थे मुझे ऑफ कैमरा एक स्टोरी बता रहे थे जो कबूतर बच्चे किसी के घूम रहे थे, जैसे वो मुझे आप दोबारा ऑन मीडिया भी बता दें ज़रा, वो आप क्या पैगाम देना चाह रहे थे वो बता दें ज़रा दोबारा। और दूसरा ये है कि जो मतलब जैसे अब पंजाब में काठिया साहब के बच्चे का रोला बना, जी जी वो उनके वो उड़े फाउल हैं। जी ठीक है। जो पट्टी वाले जैसे कबूतर उड़ते हैं 5-6 बच्चे एक दूसरे के पीछे उड़ रहे हैं, जी जी वो फाउल है। जी, वो जी। सामने नजर आ रहा है कि वो पट्टी वाला है। ठीक है। ठीक है ना। उस्ताद जी मेरा बेसिकल पार्टी रियाज पार्टी से मेरा तल्लक है, उस्ताद तारिक गुजर का मैं शागिर्द हूँ। तो उन्होंने भी एक पैगाम दिया था सोशल मीडिया पे, कल या परसों ने दिया था कि उस्ताद मिठू लाली के बारे में ना, उन्होंने ये पैगाम दिया था कि एक तो वो लाहौर में आके शौक कर रहे हैं, हमें पंजाब वालों को चाहिए, लाहौर वालों को चाहिए कि उनकी हौसला अफजाई करें। ठीक है। और जो आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि शोर डला हुआ है जी, कबूतर पट्टी वाले हैं या नहीं है। अब मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने पैगाम दिया जी उनके कबूतर पट्टी वाले नहीं हैं। ठीक है। अपने अपने उस्ताद की राय होती है। जैसे रिसेंटली मैंने उस्ताद राजा अफ्तार काका साहब का भी इंटरव्यू किया, उन्होंने भी ये बात बोली है कि जिनके कबूतर पट्टी वाले नहीं हैं। माशाल्लाह आपका अच्छा खासा तजर्बा है कबूतरबाजी में, आपको माशाल्लाह बहुत टाइम हो गया। पहले आप मुझे बताएं कि इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं उनके कबूतरों के बारे में, और उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं। आप मुझे सबसे पहले तो सर उनको अप्रिशिएट है उस्ताद मिठू लाली को और हसन लाली को। जी, जी। देखें एक अपना इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में जाके एक छत बनाना, यही उनको बहुत बड़ी सलूट है। ऐसा ही है। ठीक है। ठीक है। इसलिए कि अपना इलाका छोड़ के अपना घर छोड़ के उन्होंने लाहौर जाना है, उधर छत बनाई है। ठीक है। और वहाँ कबूतर छोड़ने और बाजी उड़ानी है, ये नॉट अ इजी टास्क। ऐसा ही ठीक है। इसके लिए उनको जो है ना सलूट मारनी चाहिए ऐसा ही कि उन्होंने एक बहादुराना फैसला किया और दिलेरी का मुजाहरा किया। ठीक है। उसके बाद कबूतर देखें, कबूतर आपको फाउल अगर उड़ेंगे तो आप उनको कह सकते हैं। आप जुबानी कह रहे हैं जिसमें ढांगी वाला पर है या इसमें पट्टी वाला पर है, तो मेरे ख्याल में ये गलत बात है। गलत बात जब है। कबूतर लाहौर में आपके असूल के मुताबिक उड़ेंगे, बंद हो गए हाँ और जी। निकलेंगे, हाँ तो जी। आप नहीं कह सकते। ऐसा ही है। तो मैं जो समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो टफ टाइम देंगे लाहौर में, इंशाल्लाह। और उनके अच्छे कबूतर हैं और अच्छे खिलाड़ी। ठीक है। सर जी आप क्या कहना जी चाहते हैं। मैं भी यही कहता हूँ कि कम से कम आपने वक्त से पहले ही शोर करना शुरू कर दिया है। जी, जी। ये तो फिर वो बात होगी कि बंदा जैसे खौफ खाता है उनसे। बात असल में ये है कि उन्हें आने दें, जी जी वो अपनी छत बनाएं, वो अपने कबूतर भी छोड़ेंगे। वो जी। अगर कबूतर छोड़ते हैं, उनके कबूतर फौल में उड़ते हैं तो हाँ फिर जी। आप उन पे एलिगेशन लगाए ना, हाँ जी, हाँ या जी। उन पे आप उनके कबूतरों पे उंगली उठा सकते हैं। ऐसा ही है। अगर वो क्या नाम है धूप के उड़ते हैं, फौल के बगैर उठते जैसे हैं। काटके साहब के उड़े हैं, हाँ। वो फौल में उड़े हैं, ठीक है। तो उन पे एलिगेशन लग गया। हाँ जी। अगर उनके कबूतर बंद होके उड़ते हैं और टाइम करके आते हैं, जी जी तो सही तरीके से उड़ते हैं कबूतर, तो आप उनके ऊपर नहीं एलिगेशन एलिगेशन लगा सकते। ठीक है। ठीक है। तो वक्त से पहले नहीं किसी के बारे में ऐसी राय कायम करनी चाहिए। वो उन्होंने एक पंजाब में 3 साल 4 साल से वो चैंपियन जा रहे हैं। ठीक है। और उस मतलब जो चैंपियन जाए उसके ऊपर एलिगेशन लगा दें, इस तरह नहीं। ये गलत है। उसकी छत पे तो उनकी मेहनत है, उनकी अल्लाह पाक ने उनको एक अरूज बख्शा है। जी जी ठीक है। तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं कि यार उन्होंने बहुत अच्छा एक निज़ाम किया है। ठीक है। तो अगर वो लाहौर में आए आ रहे, सब तो पहली बात तो ये है कि उनका सबसे दिलेराना फैसला है कि वो लाहौर में आ रहे हैं। ठीक है। आप लोगों की कॉल पे वो उन्होंने अपना इलाका लब्बैक छोड़ है। के वहाँ पे शौक करेंगे। ऐसा ही। ठीक है। तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि ना कि उनकी टांगे खींचनी शुरू ऐसा कर ही दें। है। अच्छा उस्ताद काजी साहब आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। पटवारी बोलना चाहते हैं पटवारी बोलो, लेकिन बोलना थोड़ा उच्चा जी। हाँ जी हाँ जी। तुसा क्या आखना चाहते हो उन्होंने कबूतਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम देना चाहते हो मीडिया के थ्रू। हाँ, जो कुछ है जी हम अपने उस्ताद की वजह से हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह उन्होंने हर चीज़ मेहनत, खुराक बनानी सिखाई, हमें खुराक बनानी भी नहीं आती थी। ठीक है। हर चीज़ सिखाई उन्होंने। ठीक है। माशाल्लाह
तो उस्ताद जी हमारे बहुत ही मतलब अब तो हर बंदा अभी मिट्ठू लाली को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है ना जी। जी जी ऐसा ही ये है। देखें उनका दौर है, ठीक कुछ है। दौर होता था आज से 30 साल पहले सखी भट्टी साहब का, ऐसा ही है उनका तो। उस्ताद जी का उनका दौर था। जी। अब तो दौर है जी मिट्ठू लाली का। अब जिस तरह पंजाब में छतें इस दफ़ा शौक हो रहा है ना, हाँ जी हाँ जी तो और कई छतें अच्छी निकलेंगी। ठीक है। देखिए जी अब इस दफ़ा जो शौक हो रहा है ना जी, मेरे हिसाब में पिछले 10 सालों में भी इतना शौक छतें मुकाबले नहीं हुए। हाँ जो इजाफा हो रहे हैं। हाँ जो उस्ताद मोहम्मद भाई आए हैं मैदान में माशाल्लाह, उनको भी हम दाद देते हैं कि लाहौर से निकल के पंजाब में शौक कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात देखिए है। दोस्तों यही होता है, जो अच्छा प्लेयर होता है वो यही बात करता है। जैसे इन्होंने पहले बात की है कि उस्ताद मिट्ठू लाली ने एक कहते हैं कि दिलाना फैसला किया है, इसके बाद इन्होंने उस्ताद मुबशर खोकर के बारे में भी यही बात बोली है। क्यों बोली है? क्योंकि ये एक शो करने वाले लोग हैं और ये शो को प्रमोट करते हैं, ठीक है। देखिए ये नेगेटिव को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि देखिए उनकी आपस में बाजियाँ लगी हुई हैं। अभी के उस्ताद मुबशर खोकर की उस्ताद मिट्ठू लाली के साथ भी बाजियाँ भी लग चुकी हैं, लेकिन ये दोनों प्लेयर को अप्रिशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक प्लेयर पंजाब से उठ के लाहौर में गया है और एक लाहौर वाला प्लेयर उठ के पंजाब में आया है। तो हम दोनों प्लेयर को अप्रिशिएट भी करते हैं, उनके लिए नेक ख्वाहिशात भी हमारी हैं। सर इनको चाय वगैरह देना, ठंडी हो रही है ज़रा, तो उनसे और सवालात भी करते हैं। अच्छा उस्ताद जी, कोई आपका वैसे भी ब्रीडिंग में माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है, तो कोई एक ऐसे कोई कबूतर पकड़ते हैं जिसमें से आप कुछ पॉइंट हमें बताएं, हमारे देखने वालों को भी बताएं, कबूतर को देख के उनके पर के बारे में बता दें या उनके कोई चोंच के बारे में बताएं, उनके पंजों के बारे में बताएं, कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो हमारे शौकीन हजरात हैं, ताकि उनको कुछ सीखने को मिले, देखने वाले को भी सीखने को मिले। क्योंकि हमारी वीडियो माशाल्लाह इंडिया में भी देखी जाती है, आउट ऑफ कंट्री भी देखी जाती है, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन देखी जाती है। तो उस्ताद जी किसी एक कबूतर को दिखाएं ना, आप लेके आए वीडियो वाला। अच्छा उस्ताद जी, तब तक आप ये बात बताएं कि अभी ये जो छत है ये वाली, तो ये पंजाब में हिस्सा ले रही है, ऐसा ही है? तो तकरीबन पंजाब में और ये जो पिंडी की कबूतरबाजी है, ये दोनों एक अलग फॉर्मेट है, ऐसा ही है? एक पाबंद है और दूसरा ओपन है, ऐसा ही है? तो अब आप खाली पिंडी में शो करेंगे या दोनों शो को साथ लेके चलेंगे, क्या करेंगे आप? कोशिश तो हमारी यही है कि दोनों शौक को, मतलब पिंडी में भी अब ओपन बाजियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। ठीक है। पिंडी में भी हमारी बाजियाँ लगेंगी इंशाल्लाह, ओपन ही लगेंगी। अच्छा पिंडी में ओपन ही शौक करेंगे। अच्छा ओपन ही करेंगे, ओपन का ही शौक करेंगे। आप ये कहते हैं कि शो को बढ़ाना चाहिए, वसी करना चाहिए, क्योंकि देखें कि जैसे उस्ताद शाहिद खान ने भी परसों एक वीडियो में बोला है कि हमारे ऊपर से शो गुजर के KPK पहुंच गया है, हाँ। ठीक है। ये खिता जो हमारा है ये पीछे रह गया है। और ये सारा क्रेडिट जो है, मैं आज भी अल्लाह पाक उनको सेहत दे, हमारे पंजाब के नामवर उस्ताद महीन नवाज घुमन साहब को जाता हाँ है, जी। जिन्होंने ये पंजाब में सबसे पहले सियालकोट से रावलपिंडी में इस्लामाबाद में उन्होंने बाजी लगाई, ठीक है। और बाजियाँ उड़ी, उसके बाद फिर और पंजाब में उन्होंने बाजियाँ लगाने शुरू ठीक की, है। और ये आस्ता आस्ता ट्रेंड चला और शौक दिन ब दिन तेज़ी की तरफ गया। ऐसा ही है। ये जो शाहिद खान साहब के सर से गुजर के KP तक भी गया है, या जो भी है, ट्रेंड उन्होंने सेट किया है। ट्रेंड उन्होंने सेट किया है। पंजाब में क्या पाकिस्तान में ये काम शुरू हो गया है, ठीक है। लेकिन इसका सेहरा जो है वो महीन नवाज घुमन साहब के साथ पे है। अच्छा अच्छा। कि उन्होंने एक बहुत दलेराना उस वक्त भी फैसला किया था, सखी भट्टी साहब के साथ इधर पिंडी से शौक किया था, वो सियालकोट से थे, ठीक है, अच्छा शौक हुआ था। उसके बाद लोगों को शऊर आया और लोग पंजाब में निकले, बाजियाँ लगाना शुरू। ठीक है। अच्छा उस्ताद मोइन नवाज गुमन से भी एक बात याद आ गई कि रिसेंटली उन पे ऊपर बैन लगाया जा रहा था सियालकोट कमेटी की जानिब से ना, गुजरावाला कमेटी की जानिब से, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। सबसे पहले उस्ताद जी मैं आपको माजरत करता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो माजरत करता हूँ, मैं आ नहीं सका क्योंकि फैमिली में कुछ ऐसी रीज़न बन गई थी। इंशाल्लाह मैं आपके पास लाजमी चक्कर लगाऊंगा। तो उस्ताद जी जो उन पर बैन लग रहा था, आपको पता है इस बारे में? जी जी। तो आप मतलब ये बयान लग रहा था, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उनका शौक हो रहा था एक पार्टी के साथ ना, उसमें कुछ एक ऐसा उस्ताद थे जिन पे बैन लगा हुआ था, तो उन्होंने उनके साथ भी शो किया है। तो जो कमेटी है उन्होंने बोला कि आपने इनके साथ शो क्यों किया है, ठीक है। तो अब आप अगर ऐसे लेजेंड बंदे के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उनके शो पे पाबंदी लगाई जाए, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, जब मेरिट आ जाए ना जी जी, तो वहाँ पे लेजेंड हो या कोई हो, सब पे लग सकती है, ठीक है। लेकिन उन पे जो बैन लगा था वो मोइन नवाज घुमन साहब की वजह से ही लगा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। और उन्होंने पहले कट पे आके माजरत कर ली मोइन नवाज साहब से,
माफ़ी मांग ली, अपनी ज़्यादती की माफ़ी मांग ली और उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम माफ़ करते हैं और आप को एलिगेशन करते हैं। ठीक है, वही फैसला फिर जब उधर पंजाब कमेटी के पास गया है ठीक है। तो उन्होंने फैसला जब कर दिया है, सुप्रीम कमेटी किस लिए बनाई जाती है कि वो फैसले को जब आप देखते हैं कि हाई कोर्ट में फैसला होता है उसको सुप्रीम कोर्ट जाके पता करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया है तो फिर तो कोई रीज़न ही नहीं रह जाता ना। ठीक है। फिर नवाज साहब उस्ताद जो उन्होंने कह दिया कि मैंने उसको माफ़ कर दिया, तो फिर उनके ऊपर पाबंदी लगाना या शौक ना करने वाला मकसद ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है। चलिए नहीं दोस्तों, ये इनके पास एक कबूतर आ गया है, जोड़ों वाला कबूतर है। इसका शौक आपको करवाते हैं और कुछ सीखते भी हैं इनसे। तो उस्ताद जी, इस कबूतर में आप माशाल्लाह बैठे हैं आप। ये जी सुहेल इंसार खान साहब के घर का कबूतर है, मगर हमारे पास तो वही कबूतर है सारे। अच्छा अच्छा इसका मैं थोड़ा सा शौक कराऊंगा आपको। अच्छा अच्छा। उस्ताद जी, साथ पहले आप इसकी आँख का मुझे शौक करवाएं ना, आँख से शुरू करें। तो मुझे आपने थोड़ा सा बताना भी आँख के बारे में भी कि इसमें क्या क्वालिटी है, कैसी आँख होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, रिंग कैसे होने चाहिए, कितने होने चाहिए, क्या चक्कर है, ये क्या खाली। आप पहले शौक करवाएं ना, फिर मैं आपको बताऊँ। ठीक है, ये आँख का शौक करें। ठीक हो गया उस्ताद जी, अपनों का शौक करें। सही, थोड़ा सा ऐसे करें ना, ऐसे छाँव में करें, थोड़ा सा छाँव में करें। सही, बैठे ने आप। ये देखें जी, पनों का शौक करें दोस्तों। तो उस्ताद जी साथ से बताते हैं किनके आपके, ये किनके घर के हैं, मुझे साथ बताना है। सुहेल इंसार खान साहब के घर से एक मगर आया हुआ है, ठीक है, इसका टेल का शौक करें। ठीक है, बताते जाएं। देखें जी, मैं तो खुद अभी स्टूडेंट हूँ, लेकिन हर बंदे की अपनी एक समझ परख होती है। सबसे पहले तो कबूतर जब आपके हाथ में आए ना, हाँ जी हाँ जी, सही। कबूतर का जो बैलेंस है, हाँ जी। कबूतर का बैलेंस होना चाहिए कि आपके हाथ में बैलेंस है। ठीक है। कबूतर आउट ऑफ बैलेंस नहीं होना चाहिए कि दुम बहुत लंबी है और उसकी हड्डी छोटी है। अच्छा। दूसरा, जब यह हाथ अच्छा उस्ताद जी, एक माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, 1 मिनट के पार खोलें ज़रा। अच्छा उस्ताद जी, आप मुझे परों के बारे में आप बताएं। ये देखें जी, ये जो 10वीं कली होती है, ये देखें, ये हाँ जी बताएं। जो उस्ताद कहते हैं जी, नावा कुंदा जो है वो बड़ा होना चाहिए, इससे कबूतर की वापसियाँ अच्छी हो जाती हैं। देखें, अब इसका 10वां कुंदा छोटा है और नवा कुंदा जो है वो 8वें और 10वें से बड़ा है। ये देखें आप, ये कबूतर की एक अच्छे की निशानी है। दूसरा, कबूतर के जो पर की तीली है वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। जितनी मोटी तीली होगी उतना हवा में कबूतर अच्छा उड़ेगा, गर्मी में और बंद ठहर में कबूतर में नहीं उड़ेगा। ठीक है। ठीक है, कबूतर की तीली बारीक होनी चाहिए। ठीक है। कबूतर रेशम होना चाहिए, कबूतर मोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ये नए देखने वाले बंदों को जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ कि कबूतर मोटा नहीं होना चाहिए, कबूतर रेशम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, ये देखें, ये कबूतर की एक हड्डी आ रही है, ये इधर हड्डी ख़त्म हो गई है। ठीक है। और ये आगे जोड़ है। ठीक है। इनके दरमियान में ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। ज़रा फासला नहीं चाहिए, कम से कम कितना हो? कम से कम बिल्कुल, ये आपकी जुड़ जितना ज़्यादा करीब होगा, जुड़ा होगा, उतना अच्छा होगा। दूसरा, ये जो जोड़ है ये खुला नहीं होना चाहिए और ये सख्त नहीं होना चाहिए। ठीक है। कई कबूतर होते हैं कि आप उनको ऐसे हाथ में पकड़ेंगे तो उसका जोड़ आपकी हथेली में चुभेगा, वो कबूतर भी अच्छे नहीं होते चाहिए। ठीक है। कबूतर का जोड़ बंद होना चाहिए, लेकिन जैसे मुर्गड़ी हड्डी नहीं होती नरम, इसको दबाएं नरम होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अच्छे कबूतर की निशानी है। ठीक है। उसके बाद कबूतर की गर्दन जब आप ये पकड़ते हैं, जी जी, ये गर्दन पतली होनी चाहिए। ठीक है। जितनी पतली होगी उतना अक्लमंद कबूतर होगा, उसके जाया होने के रेशो कम होगा। अच्छा 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 अच्छा। और कबूतर की पलक जो है वो भी बारीक होनी चाहिए। ठीक है। मेरे ख्याल के मुताबिक कबूतर के अंदर जितनी चीजें बारीक होती जाएगी उतना अच्छा होता जाएगा। ठीक है। जैसे उसकी ये नली है, ठीक है, वो बारीक होगी जितनी उतनी अच्छी है। ठीक है। उसकी पलक जितनी बारीक है उतनी अच्छी है। ठीक है। कबूतर जितना सिमेट्री में है, ज्यादा मोटा नहीं है, वो अच्छा है। मेरे ख्याल में, मेरी समझ के मुताबिक तो ये अच्छे कबूतर की निशानी। अगर रेशम कबूतर होगा, मोटा नहीं होगा, तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। जितना रेशम कबूतर होगा उतना गर्मी में अच्छा उड़ेगा। अच्छा उस्ताद जी, ये मुझे बताएं कि इस्लामाबाद पिंडी में आप माशाल्लाह ब्रीडिंग में आपका अच्छा खासा तजर्बा है। वैसे आप तो अपने कबूतरों को प्रेफर करते हैं, ठीक है माना, लेकिन इस्लामाबाद पिंडी में आप क्या कहते हैं कि किन कबूतरों को ज़रा प्रेफर करना चाहिए? देखें, क्योंकि यहाँ पे हवा भी है, वो चीज़ें भी हैं, इलाके का अपना माहौल होता है, तो ज़्यादा बेहतर है। उस्ताद उन्होंने यहाँ पुराना शो करते हैं, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक जो लाहौर और गुजरांवाला है वहाँ ठहरमा मौसम है। ठीक है। वहाँ कबूतर गर्मी में वही उड़ता है जो डूब के उड़े। ठीक है। ठीक हो गया। लेकिन इधर का मौसम में थोड़ा सा डिफरेंस है। इधर थोड़ा सा कबूतर जो है साइज वाला और थोड़ा सा वेट वाला होगा, तो मेरे ख्याल में उसके लिए कामयाब।
ठीक अब है। ये कमगर कबूतर है, अगर आप इनमें सियालकोटी क्रॉस डाल लें या टैडी क्रॉस डाल लें तो इस मौसम के हिसाब से वो कबूतर वो बेहतर अच्छा कबूतर है वो। अच्छे कबूतर हो जाते ठीक हैं, है। इसलिए कि यहाँ इतना टेम्परेचर नहीं है। ये कबूतर है, ये डूब जाते हैं और इनको अपने मुताबिक अगर टेम्परेचर ना मिलेगा तो ये निकलते नहीं है, तो ठीक है। उस कबूतर का फायदा भी नहीं है जो रात को घर ना बैठे। ठीक तो है। इस मौसम के हवाले से कबूतर को यहाँ बनाना पड़ेगा। बाकी उस्ताद उस्ताद जी आपसे मेरा एक और क्वेश्चन है, पहले आप मुझे बात बताएं, माशाल्लाह आपका पंजाब से तल्लक है, अक्सर पंजाब के कुछ सीनियर उस्ताद तो नहीं क्योंकि वो इस चीज़ को तो मैं कहते हैं कि किसी बात में नहीं लाते, आप मुझे ये बात बताएं कि इस्लामाबाद और पिंडी कबूतरबाजी में क्या डिफरेंस है, मुश्किल कहाँ की है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद की कबूतरबाजी बहुत आसान है, आप दोनों चीज़ों की, क्योंकि आपने यहाँ पे भी शौक देख लिया, वहाँ पे भी देख लिया, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? इस्लामाबाद और पंजाब की, पंजाब की कर लें, चलें इस्लामाबाद और पिंडी की। पिंडी नहीं, इस्लामाबाद और पंजाब की, जैसे लाहौर कर लें, लाहौर कर लें, गुजरावाला कर लें। देखें लाहौर में टेम्परेचर है, गुजरावाला में टेम्परेचर है, वहाँ 44-45 टेम्परेचर जाता है, इससे अब भी जाता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में गर्मी की कबूतरबाजी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। पिंडी में बेशक हवा चलती है, मौसम ख़राब होते हैं, लेकिन टेम्परेचर में कबूतर उड़ाना ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी आप पहले उस्ताद वहाँ हैं, अच्छे कबूतर का भी पता चलता है और अच्छे उस्ताद का भी पता चलता है, इसलिए कि टेम्परेचर में ना हल्का कबूतर उड़ सकता है और ना हल्का उस्ताद उड़ा सकता है। ठीक है। अगर उस्ताद जी मुझे बात बताएं कि अगर कबूतर आपका सुबह से उड़ के आ रहा है, ठीक है, अब वो शाम हो गई, हवा चल गई है एकदम यहाँ पे, तो फिर वो कबूतर कैसे बैठेगा? मुझे बताएं, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? निस्बत ये है कि वो चलो गर्मी में तो गर्मी तो है ही है, गर्मी में तो कबूतर उड़ के आ गया है, अब जब वो लैंडिंग कर रहा है, बैठ रहा है, उसको अपना जोर लगा के वो आ गया है, उसके बाद हवा चल जाए तो मैं क्या ये कबूतर क्या कहता हूँ करें? कि ये लोग कहते हैं जी पिंडी का मौसम हो रहा है, गुजरावाला का हो रहा है, लाहौर का हो रहा है। ठीक है। अगर आप किसी भी ब्रीड का बच्चा यहाँ छोड़ते हैं तो बच्चा इसी माहौल में उड़ना सीखता है। ठीक है। ये नहीं है कि वो गुजरावाला उड़ रहा है या लाहौर उड़ रहा है और आपने ला के यहाँ बाजी में उड़ा दिया, उसने अगर फटके दी हैं या वो उड़ना उसने सीखा है तो इसी माहौल में उड़ना सीखा है। ठीक है। सारी बात है कि इस माहौल में अच्छा उड़ता है तो आपने उसको बाजी में डाला है। ठीक है। अगर वो अच्छा नहीं उड़ेगा फटकों में ज़ाया हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो अच्छा कबूतर होता है वो हर जगह उड़ता है। हाँ अच्छा, कबूतरबाजी मतलब आपके कहने का मतलब है कबूतरबाजी हर जगह पे। अदनान हफीज की छत में मेरे घर का बच्चा इस जेठ में उड़ा है जी जी। और पोठोहार चैंपियन हुआ 118 टी। ठीक है। तो वो छोटे से कद का बच्चा है। ठीक है। अब मेरा ये इन उस्तादों से सवाल है कि अगर छोटा सा बच्चा उसका साइज नहीं है तो वो क्यों उड़ा है? ठीक है। अच्छा कबूतर हर जगह उड़ता है। अच्छा कबूतर हर जगह उड़ता है। और आप ये बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद की कबूतरबाजी हो या पिंडी की हो या लाहौर की हो या पाकिस्तान जहाँ की भी हो, मुश्किल हर जगह पे है, मुश्किल लगता है। इजी किसी जगह पे नहीं। आप ये नहीं कह सकते थोड़ी सी अल्टरनेशन करनी पड़ती है माहौल के साथ, जैसे कराची में हवा चलती है, ठीक है। पिंडी इस्लामाबाद में हवा चलती है, तो उस हवा से आप कबूतर को थोड़ा सा उस हवाले से बना लें। ठीक है। थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है। ठीक हो गया। तो उस्ताद जी आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो पिंडी के हैं, आप क्या कहते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद की या पंजाब की कबूतरबाजी में क्या फ़र्क है? जी पिंडी इस्लामाबाद में जो है ना मौसम दिन में 3 रंग बदलता है। ठीक है। तो 3 रंग बदलने में जो है ना, और पंजाब में एक जैसा मौसम, एक जैसा मौसम है। ख़ास करके लाहौर में और इनके इर्द गिर्द जो इलाके हैं उनमें मौसम एक जैसा है। ठीक है। और आप ये देख लें कि जब सखी भट्टी साहब की और मोइन नवाज साहब की बाजी उड़ी थी, जी जी सखी भट्टी साहब अपने सारे जो लाहौर में कबूतर उड़े हुए थे ना, जी जी। वो सारे ला के यहाँ पे उन्होंने गर्दान किए थे। ठीक है। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे आके फ्लॉप हो गए। ठीक है। क्यों? कि यहाँ के मौसम का डिफरेंस था। ठीक है। यहाँ के मौसम में वो नहीं चल सके। उस्ताद जी किन की बात करें, दोबारा रिपीट करें ज़रा। जी मेरे साइड कोई बात नहीं, देखे ना, ये हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, ये हम कबूतरों की बात कर रहे हैं। मौसम हाँ, बता रहे हैं वो तो लेजेंड बंदे हैं, हम उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, वो लेजेंड है, लेकिन हम अपनी बात वैसे वो कर रहे हैं। इसलिए कि मौसम नहीं था यहाँ का, वहाँ पे वो टिकमे मौसम में हाँ जी। शाम तक वो उड़ने वाले। लेजेंड बंदे हैं वो, कोई शक ठीक नहीं। है, लेकिन यहाँ का मौसम जो है मैंने जैसे बताया कि दिन में 3 रंग बदल जाता है। ठीक है। तो उस हिसाब से वो वहाँ के बने हुए कबूतर थे, वो यहाँ पे कामयाब नहीं हो सके। ठीक है। यहाँ पे जब आप कामयाबी करते हैं कबूतर के अंदर थोड़ा सा चेंज लाते हैं, सिक्योरिटियों के साथ आप इनको जब क्रॉस देते हैं तो कबूतरों के थोड़े वेट बढ़ जाते हैं, और वेट बढ़ा हुआ कबूतर जो है वो ज़्यादा गहराई नहीं करता, चमक में रहता है। ठीक है। तो उस वजह से वो घर भी बैठ जाते हैं और वो इधर कामयाब हैं। ठीक। जो पंजाब के लाहौर के कबूतर हैं या कसूर के कबूतर हैं, उन्होंने गहराई बहुत ज़्यादा करनी है तो वो निकलते ही नहीं शाम तक, उनकी ठीक है। उड़ान ही नहीं पूरी होती।
जो वो निकलेंगे तो वो बैठेंगे। मौसम हल्का हो जाता है, कभी तेज़ हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मिक्स कबूतर जो हैं, मतलब है कि सियालकोटी और आप कर लें मगर क्रॉस कर लें, टैडी सियालकोटी क्रॉस कर लें, तो वो कामयाब है। जैसे अब मेरे पास मोतियों वाले कबूतर हैं, जॉन फ्रांसिस वाले, ठीक है। सब 50 साल से 60 साल से हमारे पास वो नस्ल चल रही है। ठीक है माशाल्लाह। और वो पिंडी में उन्होंने मतलब एक डाक की बाजियों में अच्छा परफॉर्म किया। ठीक एक हो गया। वक्त में उनका बहुत नाम था। ठीक हो गया। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों आपको सेटअप का भी शो करवाते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह नहायत ही खूबसूरत सेटअप है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक माशाल्लाह केजीज ही केजीज बने हुए हैं। कबूतर कुछ खुले भी हुए हैं, उन्होंने परपट्टी भी कर दी है। उनका भी हल्का सा आपको व्यू दिखाते हैं। ये ऊपर भी इन्होंने सेटअप बनाया हुआ ब्रीडिंग के लिए, ये नीचे भी है, ये देखें जी, ये सामने भी है। उस्ताद जी 2 मिनट आओ ना ज़रा, अपना व्यू दिखाओ ना, स्टार्ट करो ना, इथू स्टार्ट करो ज़रा। ये कौन से कबूतर हैं उस्ताद जी? ये वाले, ये परपट्टी में डालें सारे? परपट्टी की हैं, ये मादियाँ हैं सर, ये अच्छा। बाजी वाले खाने हमारे। ठीक है, इधर आ जाए सामने आए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बैठ खड़े खड़े दें। ये हमारे बाजी वाले जहाँ से पल्ला लगता है ना हमारा, जी, जी। ये मादियाँ पुट्टी हुई हैं। हाँ जी। ये नर। ठीक है। बाकी आगे बच्चे हैं सारे, ये 6 खाने, ये सारे उड़ाई वाले हैं। सारे उड़ाई वाले हैं उड़ाई वाले माशाल्लाह। जी दोस्तों, ये चाचा जी कबूतर लेके आए जी, इसका भी शौक घर है। का है जी, उस्ताद जी खुद ही बताएंगे इसके बारे में। देने उस्ताद जी को दे देना। दोस्तों अब इस कबूतर का भी शौक करवाते हैं जी। इन कबूतरों की बात कर रहे थे आप? जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। इसकी आँख का शौक ये है। जॉन फ्रांसिस वाले फ्रांसीसी कबूतर है, ठीक है और ये मेरे पास अरसा 50-60 साल से मौजूद है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ठीक हो गया। और इन्होंने पिंडी में एक वक्त में अपना नाम बनाया है। चलें जी, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे। और खोलें इसके, देखिए दोस्तों माशाल्लाह, जहाँ तक कुंदा खोटा है पूरा कुंदा, और बगलों पे बगलें भी देखें जी, कमर के ऊपर बगल है, पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ है। माशाल्लाह जी और जैसे उस्ताद लोग कहते हैं कि टिपें बारीक होनी चाहिए, जी जी, तो इनकी पूरे बारीक है। पत्थर में बने हुए हैं और पूरे वेट में है कबूतर। ठीक हो गया, ठीक है। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, आपने टाइम दिया। उस्ताद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। चलिए दोस्तों, ये देख लें छत का एक व्यू आखिरी ले लें, इसका वीडियो क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद आपको अच्छे किसी उस्ताद के पास जाके इंटरव्यू करेंगे, वो वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। ये इनकी छत का व्यू है जी, ये देख लें जी, इर्द गिर्द का माहौल भी देख लें। ये इनके उस्ताद जी का फ़ोटो भी आपको दिखा देते हैं जी, ये देखें ज़रा, ये देखें जी, उस्ताद इब्राहिम उर्फ उबरी उस्ताद, ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी, ज़बरदस्त हो गया जी। चलिए दोस्तों, मज़ीद किसी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाजमी लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।